لائن آف کنٹرول کے آزاد کشمیر جھمپ سیکٹر میں دھماکہ، پاک فوج کے 5 جوان شہید۔ ISPR کے مطابق بھارت بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ واقعہ بھارت کی ریاستی دہشت گردی کا ثبوت ہے۔ کوئی NRO کی چھوٹ نہیں دوں گا، جس مرضی بادشاہ سے سفارش کروا لیں، جس مرضی جس کے پاس چلے جائیں، گھٹنے گوڑے دبائیں اس کے، جس مرضی بادشاہ سے سفارش کرا لیں، ان کے گھٹنے دبا لیں، NRO نہیں ملے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کا 2 ٹوک اعلان، کہا 10 سال میں شریف خاندان اور زرداری ارب پتی بن گئے، اب سب کے لیے قانون ایک کریں گے، چھوٹا ہو یا بڑا ڈاکو سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہوگا۔ اثاثے ظاہر کرنے کی اسکیم کا وقت ختم ہونے میں کچھ ہی دیر باقی۔ 1,40,000 افراد نے اثاثے ظاہر کر دیے۔ 50 ارب سے زائد ٹیکس جمع ہوا، رات تک ڈکلیریشن کی تعداد میں اضافے کا امکان۔ بینامی جائیداد پر لیگی سینیٹر پہلا نشانہ، فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے چودھری تنویر کی 7,000 کنال اراضی ضبط کر لی۔ رانا ثنا کو کچھ ہوا تو ذمہ دار وزیر اعظم ہوں گے، نون لیگ کے صدر شہباز شریف کی للکار، گرفتاری کا ذمہ دار وزیر اعظم کو قرار دے دیا۔ شاہد خاقان عباسی نے رانا ثنا کے خلاف FIR جھوٹ کا پلندہ قرار دے دی۔ پیپلز پارٹی نے پروڈکشن آرڈرز کے قانون میں ترمیم کے حکومتی فیصلے کو مسترد کر دیا۔ ترمیم سے جمہوریت کا تصور ختم ہو جائے گا۔ خورشید شاہ کی گفتگو، کہا جن پر کرپشن کے کیسز نہیں ان کو دوسرے کیسز میں پھنسایا جا رہا ہے۔ چیئرمین نیب نے آصف زرداری کے خلاف پاک لین ریفرنس کی منظوری دے دی۔ میگا کرپشن کیسز منطقی انجام تک پہنچانا ترجیح ہے۔ جاوید اقبال کا ایگزیکٹو بورڈ اجلاس میں خطاب، ہر شخص کی عزت نفس یقینی بنانے کی ہدایت۔ نارووال سپورٹس سٹی منصوبے میں کرپشن کا الزام، احسن اقبال کی نیب راولپنڈی میں پیشی، تحقیقات کرنے والوں کو دورے کی دعوت دے دی، کہا تحقیقات تو BRT کی ہونی چاہیے، عمران کو ملک تباہ کرنے کے لیے مسلط کیا گیا، پاکستان کی ترقی کا سوچنا ہمارا گناہ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت گیس کی فراہمی سے متعلق اعلیٰ سطح کا اجلاس، گیس چوری میں ملوث عناصر کے خلاف بلا تفریق کارروائی کا حکم۔ معاون خصوصی ندیم بابر نے گیس کی طلب و رسد پر اقدامات سے وزیر اعظم کو آگاہ کیا۔ راولپنڈی میں نئی ٹرین سر سید ایکسپریس کا افتتاح، ٹرین راولپنڈی سے کراچی تک کا سفر کرے گی، 36 ارب کے خسارے کو 32 ارب پر لے آئے، 5 سال میں ریلوے کا تمام خسارہ ختم کر دیں گے، شیخ رشید کا تقریب سے خطاب۔ احتساب عدالت اسلام آباد میں رینٹل پاور پروجیکٹ ریفرنس کی سماعت، سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف پر ریشما اور گلف پاور پروجیکٹ میں براہ راست فرد جرم عائد کر دی گئی، ملزم کا صحت جرم سے انکار، عدالت نے 7 اگست کو دوبارہ طلب کر لیا۔ لاہور ایئرپورٹ پر فائرنگ، ٹیکسی ڈرائیور سمیت 2 افراد جاں بحق، 1 شخص زخمی، دونوں ملزم گرفتار کر لیے گئے، اسلحہ برآمد، مقتولین کے اہل خانہ غم سے نڈھال، حکام سے انصاف کا مطالبہ کر دیا۔ ایئرپورٹ پر اسلحہ کیسے پہنچا، تحقیقاتی کمیٹی قائم۔ ہری پور میں تربیلا جھیل میں کشتی الٹ گئی، 50 افراد ڈوب گئے، 4 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں، 15 کو بچا لیا گیا، دیگر کی تلاش جاری۔ دہشت گردوں کی مالی معاونت، 5 قلعتم تنظیموں پر مقدمہ درج، دارالارشاد معاذ بن جبل اور النفال ٹرسٹ شامل، حافظ سعید، عبد الرحمان اور امیر حمزہ نامزد، دہشت گردی کے لیے فنڈز اکٹھا کرنے کا الزام۔ اسلام آباد میں کھوکے گرانے کا CDA آپریشن درست قرار، کھوکا مالکان کی تمام درخواستیں مسترد، اسلام آباد ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ کی منظوری دے دی، کرکٹ بورڈ نے سسٹم تجویز کیا تھا، ڈپارٹمنٹس کو تعاون کی ہدایت، نوٹیفیکیشن جاری۔ ذخیرہ اندوزوں کی جگہ جیل ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب کا کریک ڈاؤن کا حکم، مقدمہ درج کر کے اسٹاک ضبط کرنے کی ہدایت، فروخت ریٹ لسٹ کے مطابق یقینی بنائی جائے، جو کام نہیں کرے گا وہ عہدے پر بھی نہیں رہے گا، افسران کو انتباہ۔
बन्नू में पोलियो के वार मजीद 3 केसेस सामने आ गए, तादाद 10 हो गई। बच्चों की उम्रें 2 से 27 माह है। वैक्सीन ना पिलाने से बच्चे पोलियो वायरस का शिकार हुए। हज ऑपरेशन कल से शुरू होगा। पहली परवाज इस्लामाबाद से रवाना होगी। कराची, पेशावर और सक्कर से 5 जुलाई को पहली फ्लाइट उड़ान भरेगी। ऑपरेशन 5 अगस्त तक जारी रहेगा। कश्मीर में होने वाली भारतीय रियासती दहशतगर्दी की छम सेक्टर में एलओसी के करीब धमाका हुआ है। धमाके में 5 जवान शहीद हो गए हैं। आईएसपीआर ने इसे भारतीय रियासती दहशतगर्दी करार दे दिया है। धमाका बरनाला के मकाम पर हुआ। शहीद होने वालों में सिपाही गुलाम कासिम, सिपाही जुहेब और सिपाही मोहम्मद तैयब, नाइक शेर जमान और सूबेदार मोहम्मद सादिक शामिल हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे नवीद अकबर से। जी नवीद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात अब तक सामने आई हैं? जी, आज लाइन ऑफ कंट्रोल से चंद मीटर के फासले पर छम सेक्टर में धमाका हुआ है, जिसमें पाक फौज के 5 जवान शहीद जबकि 1 जवान जख्मी हो गया है। आईएसपीआर का कहना है कि धमाका बरनाला के इलाके में हुआ है, जिस धमाके की नोयत का तयन किया जा रहा है। आईएसपीआर का कहना है कि धमाका भारत की जानब से रियासती दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत है। भारत की तरफ से 2 तरफा जंग बंदी मुआहदे और बैनुल-अक़वामी राब्तों की खिलाफवर्जी की जा रही है और भारत की तरफ से गुज़िश्ता कुछ सालों से मुसलसल लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफवर्जियों का सिलसिला जो है वो जारी है और उसमें बहुत ज्यादा गुज़िश्ता अरसे में इजाफा हुआ है। जो 5 सिपाही शहीद हुए हैं उनमें 44 साल सूबेदार मोहम्मद सादिक का ताल्लुक नीलम वैली की तहसील 8 मुकाम से है। वो 23 साल से पाक फौज में खिदमत अंजाम दे रहे थे। उनके 3 बेटे और 2 बेटियां हैं, जबकि शहीद होने वाले सिपाही मय्यद मोहम्मद तैयब की उम्र 26 साल थी। वो तहसील व जिला खुशाब से ताल्लुक रखते हैं, वो भी शादीशुदा थे। इसी तरह से शहीद होने वाले नाइक शेरजमान की उम्र 36 साल थी, उनका ताल्लुक जिला करक से है। वो 2 बेटियों और 2 बेटों के वालिद थे, जबकि सिपाही जुहेब का ताल्लुक आजाद कश्मीर के इलाके हजीरा से है, वो भी शादीशुदा थे और वो 7 माह से पाक फौज की मुलाजमत में थे। इसी तरह से सिपाही गुलाम कासिम जो है उनका ताल्लुक जिला सरगोदा की तहसील साहिवाल से है, उनकी उम्र 22 साल थी और वे 1 साल से पाक फौज में खिदमत अंजाम दे रहे थे। नवीद, ये बताइएगा कि ये फायरिंग का सिलसिले से आगाज हुआ था, ये झड़प थी या डायरेक्टली हमने देखा कि दूसरी जानिब से हमला किया इंडिया की जानिब से आजाद कश्मीर पर, और इस वक्त फिर क्या सूरत हाल है? अभी नहीं, सूरत हाल ये है, आईएसपीआर कहना है कि एक्सप्लोसिव था जो फटा है, जो जिसमें ब्लास्ट हुआ है। अब ये तयन किया जा रहा है कि किस किस्म का एक्सप्लोसिव था और ये एक्सप्लोसिव कैसे फटा है और कैसे उसमें धमाका हुआ है, ये सारी चीजें जिनका तयन किया जा रहा है। लेकिन ये बात तय है कि चंद मीटर के फासले पर एलओसी है, उसकी दूसरी तरफ भारतीय फौजी है, जबकि इस तरफ पाक फौज की चौकी है। तो ये बात तय है कि उधर से ये आया है एक्सप्लोसिव। ये किस किस्म का एक्सप्लोसिव था उसका अभी तयन किया जा रहा है। ये मॉर्टर था या ये कोई मिसाइल था या ये जो भी था, उस हवाले से अभी जो है तहकीकात जारी है। यानी नवीद, अभी जो धमाके की नौयत है उस हवाले से कुछ नहीं बताया गया, तहकीकात की जा रही है। हमारे साथ इसी मामले पर गुफ्तगू के लिए ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया महमूद शाह साहब। ये फरमाएगा कि भारत की जानिब से हमेशा सीज फायर मुआहदे और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की गई है, आज एक बार फिर ऐसा हुआ है। जी महमूद शाह साहब, आपको आवाज आ रही है? ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब से गालिबन हमारा राब्ता शायद मुनक़ता हो गया, हम उनसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। और आज जो वाक़या पेश आया है, आईएसपीआर के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल से चंद किलोमीटर दूर झम का ये सेक्टर है, जहां पर धमाके से पाक फौज के 5 जवान शहीद जबकि 1 जख्मी हुआ है। पाक फौज की जानिब से बताया गया है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब ही झम सेक्टर है जहां पर धमाका हुआ है। धमाके की नौयत के हवाले से अभी कुछ नहीं बताया जा सकता। हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब। महमूद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि मुसलसल हम देखते हैं कि इंडिया की जानिब से इस तरह के ओछे हथकंडे किए जाते हैं और उसमें पाकिस्तान का नुकसान होता है। पाकिस्तान हमेशा डायलॉग की बात करता है, एक दफ़ा फिर तमाम तर इंटरनेशनल लॉज को तोड़ते हुए ये किया है इंडिया ने। महमूद शाह साहब, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? राब्ता करने की कोशिश करेंगे महमूद शाह साहब से। और हमारे साथ मौजूद है रुस्तम शाह साहब, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। रुस्तम साहब, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि इंतहाई
अलमनाक बात है ये कि हमेशा जब पाकिस्तान डायलॉग की बात कर रहा होता है, इवन इंडिया से भी इस तरह की बातें सामने आ रही होती हैं, दूसरी जानिब लाइन ऑफ कंट्रोल पर कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होता है जहां से पहल हमेशा इंडिया की जानिब से की जाती है। ऐसे में जब पाकिस्तान मुसलसल डायलॉग की बात कर रहा है, तमाम तर इंटरनेशनल लॉज को तोड़कर एक ऐसा इकदाम किया जाता है इंडिया की जानिब से जो काबिल मुज़म्मत होता है। इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई काबिल मज़म्मत है। टॉक्स की जो उम्मीद बन पड़ी थी, जो करतारपुर की बात हो रही थी, वो मैं समझता हूँ कि अब कुछ दूर चली गई है, क्योंकि इसका हुकूमत पाकिस्तान को इसका नोटिस लेना होगा। ये भी देखना होगा कि ये कोई वहाँ पे मकामी जो कमांडर हैं, जो वहाँ सिक्योरिटी है, ये उनकी कार्रवाई है या किसी की शह पर की गई है, या एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी की गई है कि टॉक्स के पॉसिबिलिटी को सैबोटेज किया जाए। और न सिर्फ ये कि एहतजाज होगा, बल्कि इसका जवाब भी दिया जाएगा, क्योंकि ऐसे वाक़यात जो हैं वो उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, उन पर कोई खामोश तमाशाई नहीं रह सकता। तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक डेवलपमेंट है, और ऐसे वक्त में हुआ है जब हम बात कर रहे थे कि अब हिंदुस्तान के साथ कुछ बातचीत का आगाज होगा, करतारपुर राहदारी की बात होगी, 17 जुलाई को वो लोग आ रहे थे, उनके साथ एक मीटिंग होगी। तो अब मैं समझता हूँ कि उनसे ज्यादा अहमियत इस बात की है कि ये 5 जवान जो शहीद हो गए, इसका जिम्मेवार कौन है, क्यों ऐसे वाकया हुआ, किसने रोकने की कोशिश की, नहीं रोक सके। तो ये मैं समझता हूँ कि ये मामला जो है वो बहुत जिस तरह से कि पाकिस्तान तो हमेशा जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाता है, डायलॉग की बात भी करता है, जिस तरह से आपने जिक्र किया करतारपुर राहदारी का कि दोनों वज़राए आज़म जो है वो अपनी अपनी साइड पे इफ्तिताह करने जा रहे थे और ऐसे मौके पेश आया है। आप क्या समझते हैं कि कुछ और कुव्वतें हैं जो चाहती हैं कि ना डायलॉग हो सके, ना आपस में बैठकर बातचीत हो सके? देखिए, हिंदुस्तान में ऐसे लॉबीज मौजूद हैं जो नहीं चाहते कि ताल्लुकात नॉर्मल हो जाएं। हो सकता है पाकिस्तान में भी ऐसे हों, लेकिन हिंदुस्तान में भी ऐसे लोग हैं, बार बार हम इसका तजुर्बा कर चुके हैं। वो जब भी बातचीत के लिए कोई दरवाज़ा खुलता है, कोई अपॉर्चुनिटी आती है, तो वो उसको डिरेल करने की कोशिश करते हैं। बाज़ औक़ात वो कामयाब होते हैं, बाज़ औक़ात वो कामयाब नहीं होते। ये उन्होंने जो वार किया है, इन्होंने जब भी जो हमला किया है, मैं समझता हूँ कि ये सोच समझ के किया गया है और उस उम्मीद पर, उस बुनियाद पर किया गया है कि करतारपुर से अगर हो सकता है कि रास्ते खुलने वाले थे तो उन रास्तों को पहले ही से बंद कर दिया जाए। ठीक है, हमें ज्वाइन कर लिया है ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब ने भी। बहुत शुक्रिया महमूद साहब, आपने वक्त निकाला आज न्यूज़ के लिए। सबसे पहले तो हम एक तरफ डायलॉग की बात देख रहे हैं और मुसलसल ये बातें की जाती हैं कि पाकिस्तान के साथ डायलॉग होना चाहिए। ऑन एंड ऑफ हम इंडिया को भी देखते हैं कि इसकी हिमायत की जाती है, फिर वो बैकफुट पे चले जाते हैं। ऐसे में जब इस तरह का इकदाम इंडिया की जानिब से किया जाता है तो क्या मेंटालिटी समझ आती है, वहां पर क्या डिप्लोमेसी चल रही है इस पर? सर, मेरे ख्याल में ये बार बार हमारी तरफ से डायलॉग की बात, अमन की बात जो है, उसको वो हमारी कमजोरी समझते हैं। मेरे ख्याल में ये जो वाकया हुआ है, इस तरह के वाकयात को रोका जा सकता है। इसके खिलाफ मुख्तलिफ इक़दाम होते हैं। मेरे ख्याल में हमारी आर्मी जो है वो कर सकती है, और इस किस्म के इक़दाम जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल से पार उनके इलाके में उनके खिलाफ किए जा सकते हैं, और आखिर में वो माफी मांगेंगे, वो फिर दरख्वास्त करेंगे कि काइंडली आप ये कम करें। इस इलाके में हमें एडवांटेज हासिल है, कम सेक्टर में हमारे एडवांटेज है, और हम उस एडवांटेज को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। और ये जो हमारे 4 जवान शहीद हुए हैं, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, लेकिन इसको रोका जा सकता है, और इस किस्म के इक़दाम उनके खिलाफ उनके इलाके में किए जा सकते हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। यानी कि हम इक़दाम जो है हमारी आर्मी कर सकती है और मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है, और पाकिस्तान ने हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया भी है। महमूद शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका। रुस्तम शाह मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद थे, इसके अलावा हमारे नुमाइंदे नवीद अकबर भी हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, और ये कंट्रोल लाइन के करीब ही झम सेक्टर है जहाँ पर धमाका है, जिसमें 5 जवान शहीद हुए हैं जबकि 1 जख्मी हुआ है। अभी तक धमाके की नौइयत का अंदाजा नहीं लगाया जा रहा।
इस हवाले से आगे चलकर जो भी पेशरफ्त होगी आपको बताते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं और ये बताएं कि वक्त खत्म हो गया है, अब बेनामी जायदाद जब्त हो जाएगी। हुकूमत की एस डिक्लेरेशन स्कीम का वक्त खत्म हो एसेट डिक्लेरेशन स्कीम का वक्त खत्म हो गया है और अब होगी ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। FBI ने रावलपिंडी में सेनेटर चौधरी तनवीर की बेनामी जायदाद सील कर दी। कराची में भी 8 बेनामी जायदादों पर नोटिस जारी कर दिए गए हैं। एक दफा फिर आपको बता रहे हैं कि एसेट डिक्लेरेशन स्कीम का वक्त खत्म हो चुका है, अब होंगी कार्रवाइयां, क्योंकि बताया जा रहा है कि FBI ने रावलपिंडी में सेनेटर चौधरी तनवीर की भी बेनामी जायदाद को सील कर दिया है। रेहान शेख हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, इसकी तफसीलात उनसे जान लेते हैं। रेहान शेख, वक्त अब खत्म हो गया है, बार बार 30 जून के हवाले से कहा जा रहा था, इजाफी टाइम के बाद अब सब डिक्लेयर करने का वक्त खत्म हो गया है, क्या हो सकता है अब? जी बिल्कुल, देखिए हुकूमत की जानिब से मिनिस्ट्री स्कीम जो है 30 जून को वक्त दिया गया था, लेकिन 3 दिन की तोसी कर दी गई थी और उसके बाद आज 6 बजे जब मेरी इस वक्त आपसे बात हो रही है, FBI ने मिनिस्ट्री स्कीम का जो टाइम है ये ख़त्म कर दिया है। ताहम जो हजरात बैंक में मौजूद थे और मिनिस्ट्री स्कीम के तहत उनके डॉक्यूमेंट इस वक्त उनकी जाँच पड़ताल की जा रही है, उनको ज़रूर भुगताया जाएगा, लेकिन नया केस कोई सामने नहीं लिया जाएगा। और ये मैं बताऊँ, मिनिस्ट्री स्कीम जो है ये पाकिस्तान के लिए कोई पुरानी नहीं है। 1998 से इसका आगाज़ किया था। डिक्टेटर का दौर हो या सियासतदानों का, तमाम जितने भी हुकूमतें हैं इन्होंने मिनिस्ट्री स्कीम दी थी, जिसमें यहिया खान, ज़ियाउल हक से लेकर परवेज़ मुशर्रफ जो कि डिक्टेटर थे, इन्होंने मिनिस्ट्री स्कीम दी। इसके साथ साथ नवाज शरीफ का जो दौर आया था हुकूमत का, इसमें 2 मरतबा मिनिस्ट्री स्कीम दी गई और मौजूदा हुकूमत जो तहरीक इंसाफ की है, इसकी जानिब से भी ये स्कीम दी गई है। कुल मैं अगर बताऊं कि 22 करोड़ की आबादी में से FPR के मुताबिक हमारे 10 लाख भी ऐसे लोग नहीं हैं जो अपने जो है टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। और इसी के लिए मिनिस्ट्री स्कीम जो है मुतारिफ कराई गई थी। FPR के मुताबिक जो है अब तक जो है 1,40,000 के करीब जितने लोग जो हैं वो मिनिस्ट्री स्कीम से जो है वो फ़ायदा हासिल कर चुके हैं और उन्होंने अपनी जो है जायदादें शो कर दी हैं। इससे तकरीबन कौमी ख़जाने को 50 अरब रुपए का फ़ायदा भी पहुँचा है। बुनियादी तौर पर इस स्कीम मुतारिफ कराने का मकसद भी ये था कि कौमी ख़जाने को फ़ायदा पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किया जा सके। गो के इस बात में बहस किए बगैर के इसमें जो प्रॉपर जो टैक्स पेयर हैं, यानी कि जो लोग टैक्स देते हैं वो उसके हक़ में नहीं है, उनकी हौसला शिकनी होती है और उनके टैक्स पेयर का ये कहना होता है कि हम जैसे लोग जो सारा साल जो है वो टैक्स देते हैं और जब ये स्कीम आती है तो इसमें बहुत ज़्यादा लोग हैं वो अपना काला धन सफ़ेद कर लेते हैं। लेकिन हुकूमत की जानिब से ज़्यादा ये कोशिश की जाती है कि वो जो है टैक्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करें और इसके लिए से ज़्यादा जो लोग जो हैं वो टैक्स जमा कराएं। इसके लिए मिनिस्ट्री स्कीम जो है वो मुतारिफ कराई गई है। 6 बजे का वक्त था, 3 दिन की तोसी के बाद आज जो कि FPR की जानिब से ख़त्म हो गया है। हमारी अब से कुछ देर कबल तर्जमान FPR से बात भी हुई थी और उनका ये कहना था कि अब तक के जितने भी लोगों ने स्कीम से फ़ायदा उठाए, कितने सरकारी ख़जाने में पैसे आए हैं, तमाम तर तफसीलात मीडिया के सामने बाज़ाब्ता तौर पर कुछ देर बाद एक्सटेंशन दी गई थी, वक्त भी खत्म हो गया है। जिन लोगों ने असासे जाहिर नहीं किए हैं उनके साथ अब क्या होगा? जी बिल्कुल, देखिए जिन लोगों ने असासे ज़ाहिर नहीं किए थे, बारहा कहने के बावजूद, 3 दिन की तोसी के बावजूद, वो तमाम बेनाम प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मुंजमद कर दी गई हैं और उसका पहला शिकार हुए मुस्लिम लीग नून के सेनेटर चौधरी तनवीर जो हैं। तकरीबन उनकी जो है 6000 कनाल जो ज़मीन है वो FPR की जानिब से वो मुंजमद कर दी गई है, वो इसको अब कानूनी तौर पर बेच नहीं सकते। इसी तरह अगर हम बात करें, कराची में बिल्डर्स की कोई बिल्डिंग है और सीमेंट फैक्ट्री समेत 8 बिल्डिंग्स और इमारत ऐसी हैं जिन्हें मुंजमद करके उनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं। वो भी उस वक्त तक इसको ना सेल कर सकते हैं ना ट्रांसफ़र कर सकते हैं जब तक कि FPR उनको क्लियरेंस नहीं दी और ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। FPR के मुताबिक उनके नोटिस में है किन किन शख्सियात ने अपने असासे ज़ाहिर नहीं किए, बारहा उनको बताया गया, वार्निंग दी गई और अब 6 बजे के बाद FPR जो है वो अगला एक्शन शुरू करेगा। अभी तक तो चौधरी तनवीर जो है सेनेटर, उनकी जायदाद जब्त की मुंजमद की गई। कराची की 8 इमारत जो है उनको मुंजमद किया गया है और FPR के मुताबिक आज रात और कल बड़ी तादाद में मजीद जो इमारत और बेनामी जो जायदादें हैं उनको मुंजमद करने का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। रेहान शेख, आपका बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए।
जिस मर्जी बादशाह से सिफारिश करा लें, उनके घुटने दबा लें, NRO नहीं मिलेगा। वजीर आजम इमरान खान ने दो टोक ऐलान कर दिया। साबिक वजीर आजम और साबिक सदर पर खुलकर तनकीद की। रावलपिंडी में तकरीर से खिताब में कहा, 10 साल में शरीफ खानदान और जरदारी अरबपति बन गए, अब सब के लिए कानून एक बनाएंगे। वजीर कानून को भी हिदायत जारी कर दी है, छोटा हो या बड़ा डाकू सबके साथ एक जैसा ही सलूक होगा। एक मुल्क वसाइल की कमी से गरीब नहीं होता, करप्शन की वजह से गरीब होता है। करप्शन का मतलब पब्लिक का पैसा चोरी होना। 10 साल में इन दो हुकूमतों ने 6000 अरब से पाकिस्तान का कर्जा 30,000 अरब पे लेके गए। बच्चे भी और बच्चों के बच्चे भी अरबोपति बन गए। ये अरबोपति बन गए, कौम मकरूज हो गई। जब आप शोर करते हैं कि जी इंतकामी कार्रवाई, मैं कह रहा था कि जवाब दो पैनामा में जो इनके अरबों रुपए के महलात पकड़े गए जब लंदन में, तो उसके पीछे मेरे ऊपर केसेस किए, उसको इंतकामी कार्रवाई कहते हैं। ये जमहूरियत है। जमहूरियत में लीडर जवाबदेह होता है। मैं लंदन नहीं भाग गया था, 10 महीने जवाब दिए। सुप्रीम कोर्ट में एक एक चीज का जवाब दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साबित हुआ कि मैं सादिक और अमीन हूं। मैं रोना धोना नहीं किया, इनकी तरह जलसे जुलूस नहीं निकालने की कोशिश की। इनसे भी हम जवाब लेंगे। जितना मर्जी आपने शोर करना है। मैंने कौम से वादा किया था कि मैं उन लोगों ने जिन्होंने इस मुल्क को कंगाल किया, मकरूज किया, आज लोगों के ऊपर मुश्किलात डाली है, इंशाल्लाह इनसे मैं जवाब लूंगा। कोई NRO की छूट नहीं दूंगा। जिस मर्जी बादशाह से सिफारिश करवा लें, जिस मर्जी जिसके पास चले जाएं, घुटने गोड़े दबाएं उसके, चोरी ये करें, अरबोपति ये बने, सारों के बाहर अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज है। वो शहबाज शरीफ ने असेंबली में खड़े होकर कहा, जी देखें रुपया कितना गिर गया है, डॉलर ऊपर चला गया है। शहबाज शरीफ, आपका खानदान, जरदारी खानदान, अगर आधा भी पैसा जो आप इस मुल्क का चोरी करके बाहर लेके गए हैं, आधा भी वापस ले आए तो रुपया ऊपर चला जाएगा, डॉलर नीचे आ जाएगा। आप सजा लोगों को देते हैं ताकि अगले लोग चोरी ना करें। ये तो जेलों में ऐसे रह रहे हैं। ये तो सारों को एक पैगाम दिया जा रहा है कि अगर डाका मारो तो बड़ा डाका मारो। छोटे चोरों को सिर्फ इस मुल्क में मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ता है। हमने कानून सबके लिए एक लेके आना है। ताकतवर और कमजोर को कानून में एक तरह रखना है। अब तक सिर्फ एक छोटे से तबके की जिंदगी बेहतर होती रही है, आम आदमी की जिंदगी बेहतर करनी है। न्यूज बुलेटिन में खबरों का सिलसिला भी जारी है।